The incidence of cancer prostate is increasing. Globally, it is the second most common cancer in elderly male and is the eighth leading cause of cancer deaths. Nearly 1100,000 new cases per annum are detected, out of which about 300,000 cases they die. So the mortality accounts for about 4% of all cancer deaths worldwide globally. It has been estimated that every male after the age of 50, 1 out of every 7 will develop cancer prostate in his lifetime. प्रोस्टेट एक मेल सेक्सुअल ऑर्गन है जो कि ब्लैडर और पेशाब की जो नली होती है यूरिथ्रा उसके बीच में लगा होता है। फीमेल्स में जैसे यूट्रस होता है, मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये आमतौर पे अखरोट के साइज़ का होता है और नॉर्मली इसका काम होता है सीमेन बनाना और सीमेनल फ्लूइड जो होता है वो इसमें से बनता है। तो हर आदमी जो है, हर मेल जो है वो पैदा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ। 40 साल के बाद जो इसमें बढ़ोतरी होती है उसको बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। आमतौर पे ये बिनाइन ही रहता है, बट आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसमें कैंसर होने की संभावना हो जाती है। अर्लियर स्टेज में कैंसर प्रोस्टेट का कोई जनरल साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होता है। जो आपका पेशाब प्रोस्टेट बढ़ जाने के लिए जो सिम्टम्स होता है उसी आधार से, उसी लक्षण से लेके मरीज़ हमारे पास आता है। पेशाब करना जोर लगाना पड़ता है, पेशाब धीरे धीरे होता है, पेशाब खुलकर नहीं होता है, तो इसी सिम्टम्स में पेशेंट आता है। जब डॉक्टर उनको एग्जामिन करता है और देखता है कि उनका रेक्टम के थ्रू उंगली डाल के, जिसको डियारी कहते हैं, एक हार्ड मास है और उनका PSA बढ़ा है, तो उनको डाउट आता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। लेकिन जब लेट स्टेज हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर का, जो हड्डियों में चले जाते हैं, तो उनका बैक एक होता है कॉन्स्टेंटली, चलने में उनको दिक्कत होता है और उनका पेशाब करने में यूरेटर बंद हो गया, यूरिमिया होता है। सो एज सच पर से prostate cancer has no signs and symptoms other than BPH. There are few risk factors which can lead to cancer prostate, and the most commonest risk factor is the age. The older a man is, the more chance he will develop cancer prostate. The next risk factor is the race. It is more common among the African blacks as compared to the white. Then comes the Hispanic, and the lowest incidence is among the Orients. The third risk factor is the family history. It has been seen that if a father had cancer prostate, 50% chance his sons will have cancer prostate. And if the first generation or the first relative has cancer prostate, it is 33% there is a chance their next male generation will definitely have cancer prostate. Now, genetics has been found to be another cause of cancer prostate. If there is any mutation in the cancer suppressor gene in the body, then that gentleman is definitely going to have cancer prostate. And therefore, to prevent such kind of things, nowadays we are doing a genetic study, particularly in a vulnerable population where we have a family history of cancer prostate. Diet do contribute in developing cancer prostate. People who take rich cholesterol laden diet, particularly the red meat, the pork, the beef, they are more prone to develop cancer prostate as compared to those who do not take this. Again, people who take a lot of food having fatty acid, more fatty acid and fatty foods are more prone to develop cancer prostate. People who have a sedentary way of life has shown have a high incidence of cancer prostate than those who are active. क्लिनिकली डिफरेंस जो एक एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट होता है वो जब प्रोस्टेट को एग्जामिन करता है, जो कि लैट्रिन के रास्ते से उंगली डाल के प्रोस्टेट को एग्जामिन किया जाता है,
तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें कैंसर है या नहीं। आमतौर पे कैंसर अगर सेकंड स्टेज तक आ जाए तब हम एग्ज़ामिनेशन पे बता सकते हैं, लेकिन अगर हमें पहले पता करना है कि कैंसर है या नहीं है तो हमको एक ब्लड टेस्ट करना पड़ता है जिसको PSA बोलते हैं, या कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो कि हर आदमी को 50 साल की उम्र के बाद सालाना करना चाहिए। Diagnosed by clinical signs and symptoms and radiological imaging and finally the biopsy. ट्रीटमेंट फॉर प्रोस्टेट कैंसर इज़ कंसर्न्ड, हमारे पास 5 मोडालिटीज़ हैं जिनसे हम प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या जिसको हम रेडियोथेरेपी भी कहते हैं, कीमोथेरेपी, और इसके अलावा हार्मोन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द पेशेंट and depending on the condition, general condition of the patient, we see at the outset कि हम इस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ़र करने वाले हैं। तो सपोज़ हमारे पास अगर एक प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट आया जिसे स्टेज 1 या स्टेज 2 कैंसर है, जिसका मतलब है कि जो उसका कैंसर है वो सिर्फ प्रोस्टेट तक ही लिमिटेड है, तो उसमें हमें या तो सर्जरी यूज़ करनी है या फिर रेडिएशन यूज़ करनी है, और उस ट्रीटमेंट को हम रेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी कि हम उस ट्रीटमेंट को इस इंटेंशन के साथ यूज़ कर रहे हैं कि हम पेशेंट की बीमारी को फुल्ली क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाए या जल्दी पकड़ा जाता है तो इसका इलाज रोबोटिक सर्जरी से होता है। आजकल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी से प्रोस्टेट को निकाल देते हैं। प्रोस्टेट मतलब अगर प्रोस्टेट के अंदर बीमारी है और वो लोकलाइज है प्रोस्टेट के अंदर, यानी कि वो उसकी सेल्स बाहर नहीं गए हैं, तो हम अगर प्रोस्टेट ही निकाल दें और उसकी चारों तरफ की जो भी झिल्लियाँ होती हैं या फेशिया बोलते हैं हम उसको, उन सब को निकाल दें, तो लॉजिकली हमने कैंसर वाला एक ऑर्गन निकाल दिया, तो कैंसर को हम ख़त्म कर सकते हैं। इनवेरिएबली ये नर्व डैमेज हो जाता है। अगर ये नर्व डैमेज हो जाता है आपका इरेक्शन नहीं होगा। सो incontinence and impotency are the 2 dreadest complication of radical prostatectomy. पेशेंट हमारे पास आगे की स्टेज में आए, अगर स्टेज 3 में आता है तो फिर हमें सर्जरी या रेडिएशन के साथ हार्मोन ट्रीटमेंट भी ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगर पेशेंट स्टेज 4 में हमारे पास आए, जिसका मतलब है कि बीमारी जो है वो उसके बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल चुकी है, तो उस केस में हमें कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब अगर सेम पेशेंट हमारे पास स्टेज 3 में आता है या फिर लोकली एडवांस स्टेज में आता है, तो हमें उसको रेडिएशन या सर्जरी के अलावा उसे हार्मोन ट्रीटमेंट भी ऐड करना पड़ता है, जिसमें कि हमें उसको हार्मोन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। उसमें हमें 2 मोडालिटीज़ यूज़ करनी है, सर्जरी या रेडिएशन में से कोई एक, और साथ में हार्मोन ट्रीटमेंट। इसी तरह अगर कोई पेशेंट हमारे पास स्टेज 4 में आता है, यानी कि उसका जो कैंसर है वो प्रोस्टेट वाले एरिया से निकल के बाहर बॉडी में दूसरे एरियाज़ में जा चुका है, जैसे कि अगर वो बोन्स में चला गया है, लिवर में चला गया है या दूर लिम्फ नोड्स में चला गया है, उस तरह के पेशेंट्स को हमें साथ में कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी भी यूज़ करनी पड़ती है। कीमोथेरेपी इज़ अ टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट जो कि हम काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं, एंड वी हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट्स। ऑन द अदर हैंड इम्यूनोथेरेपी इज़ अ न्यू ट्रीटमेंट, एक नया ट्रीटमेंट है जो बहुत रिसर्च के बाद अब हमारे सामने यूज़ के लिए आया है, और जो अभी तक की रिसर्च हुई है और जो अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें इट हैज़ बीन प्रूवन वेरी गुड। सो इट सीम्स कि आगे हमारे पास और अच्छा एक्सपीरियंस होगा इम्यूनोथेरेपी को यूज़ करने के लिए। इम्यूनोथेरेपी एक नई मोडालिटी है जिसके ऊपर की बहुत रिसर्च हो रही है आजकल, और इसका जो बेसिक काम करने का तरीका है वो ये है कि ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को यूटिलाइज़ करती है। इसमें हम बॉडी को इस तरह से अपनी बॉडी को ही इस तरह से चेंज करते हैं कि वो ट्यूमर के ऊपर एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव ढंग से काम करती है। फिर इम्यूनोथेरेपी में हम बॉडी के अपने सेल्स को इस तरह से
ट्रेन कर सकते हैं या उनको इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं कि जहाँ पे वो ट्यूमर को समझ नहीं पा रहे थे और उनको किल नहीं कर पा रहे थे, वो इम्यूनोथेरेपी की हेल्प से बॉडी ट्यूमर को किल कर पाती है. सो इट सीम्स अ वेरी प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट that may become more widely available in future. आमतौर पे हर ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम में ये क्षमता होती है कि कोई भी नया पैथोजन हो या वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या इवन कैंसर भी हो, वो उसको पहचान सके और उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स माउंट कर सके. इसे हम इम्यून सर्वेलेंस भी कहते हैं और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है. जब कहीं बॉडी पे कोई अबनॉर्मल ग्रोथ हो कैंसर को करके या कहीं पे कोई इन्फेक्शन आ जाए, तो ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करता है. देयर इज़ ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन इम्यून सर्वेलेंस एंड इम्यून रिस्पॉन्स. जब ये बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है तो कुछ चीज़ें इम्यून सिस्टम की नज़रों से जा सकती हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर कैंसर सेल्स की ग्रोथ होना शुरू होती है बॉडी के अंदर, तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स है कि वो अपने आप को कवर में रखते हैं या डिस्गाइज कर लेते हैं और अब बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको पहचान नहीं सकता. अब हमें ऐसे व्हीकल्स की ज़रूरत है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स दिखा सके और उनको एक्सपोज कर सके ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें. इसके लिए हम डेंड्रिटिक सेल्स की आजकल थेरेपी यूज़ कर रहे हैं फॉर फाइटिंग कैंसर. इम्यूनोथेरेपी एक बायोलॉजिकल थेरेपी है बिकॉज वी आर यूजिंग लिविंग सेल्स टू ट्रीट कैंसर. अब ये लिविंग सेल्स कौन से होते हैं? एक टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी है डेंड्रिटिक सेल थेरेपी. डेंड्रिटिक सेल्स हमारी बॉडी के मास्टर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम कहलाते हैं क्योंकि ये बॉडी को बूस्ट करते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को, टू फाइट कैंसर बेटर. और वो ये कैसे करते हैं? जो ये डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो अपने सरफेस के ऊपर एंटीजेंस एक्सप्रेस करते हैं. दीज एंटीजेंस कैन कम फ्रॉम ट्यूमर सेल्स और फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन. और जब ये एक्टिवेटेड डेंड्रिटिक सेल्स जो एंटीजेंस अपनी सरफेस पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी भी रेस्टिंग लिम्फोसाइट जो मेजर सोल्जर्स हैं फॉर अटैकिंग कैंसर सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, और लिम्फोसाइट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो वो लिम्फोसाइट्स सब एक्टिवेट हो जाते हैं और आपस में खूब डिवाइड करना शुरू कर देते हैं. तो एक डेंड्रिटिक सेल जब एक लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है, वो लिम्फोसाइट इन टर्न अपने आप को डिवाइड कर करके अबाउट हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स की पॉपुलेशन बना के अब हमारे सर्कुलेशन में एंटर करके टारगेट करता है फॉर द कैंसर सेल्स. सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इम्यूनोथेरेपी इज that it is a targeted therapy. It is targeting only the tumor cells of the patient's body. प्रोस्टेट कैंसर अपने आप में डेथ नहीं करता बिकॉज जो प्रोस्टेट ऑर्गन है हमारा वो कोई लाइफ सेविंग ऑर्गन नहीं है. बट कई बार क्या होता है कि प्रोस्टेट कैंसर अपने आप में इतना ग्रो कर जाता है कि वो ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, यानी कि जो हमारे पेशाब को बाहर जाने का रास्ता है उसे रोक देता है. उसकी वजह से हमारी किडनीज़ के ऊपर एक बैक प्रेशर क्रिएट होता है और उससे किडनी फेलियर होने का चांस रहता है, जो कि बाद में डेथ का एक रीज़न बन सकती है. इसके अलावा जो सेकंड रीज़न डेथ का बन सकता है वो ये है कि कई बार प्रोस्टेट कैंसर अपनी जगह से बोन्स में चला जाता है या स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है या हमारे वर्टिब्रल बॉडीज़ में चला जाता है. वहाँ जाके इट कैन कंप्रेस आर स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को दबाव डालता है, उसकी वजह से हमें पैरालिसिस हो सकता है या फिर बॉडी के कुछ ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं. वहाँ उससे हम ये डेथ कॉज कर सकता है. Can we prevent cancer prostate development? No, answer is no. You cannot prevent cancer prostate development in the body, but what you can do is you can lower the risk of developing cancer prostate or lower the risk of progression of the cancer disease in your body if you have developed by doing regular physical exercises, by taking diet which are less rich in high cholesterol like the red meat which I told you and fatty foods, and also increase lot of fruits in your diet, particularly fruits which has got lot of antioxidants like lycopene and flavonoid, that is watermelon, pink guava, pink grapes, spinach, soya bean and tomatoes.
मैं कहूँगा कि ऐसा कोई श्योर शॉट चीज़ नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर को हम कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, बट येस हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल यूज़ करके अच्छा खाना यूज़ करके अच्छा अपना खान पान और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ज़्यादा एक्टिव बनाकर इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और सेकंड है स्क्रीनिंग, हम बीच बीच में अपना हेल्थ चेकअप कराएं। जो भी मेल्स 45 या 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं वो अपना स्पेशली सीरम PSA टेस्ट कराएं और डॉक्टर से क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं, तो हम इस कैंसर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बारे में एक तो विजिलेंट रहना है, क्योंकि अगर हम विजिलेंट रहें और तो हम इसको बहुत अर्ली स्टेज पे कैच कर सकते हैं और उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव इलाज हो सकता है। और अगर हमें बाय चांस अनफॉर्चुनेटली अगर इसको जल्दी नहीं भी पकड़ पाए हैं, तब भी हमें इससे हताश नहीं होना है और इसको स्टिल हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना है, बिकॉज़ जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेज 4 होने के बावजूद भी हम इस कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। कि 1 से 2 साल के अंदर हमें PSA टेस्ट करा लेना चाहिए उन सभी लोगों को जो 45 से 50 साल की एज से ऊपर है।